Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our official YouTube channel. Today, in this video session, we will discuss about cofferdam. In this session, we will discuss about what is cofferdam, its uses, selection of types of cofferdam, then types of cofferdam, then design features of cofferdam. Last one is leakage prevention in cofferdam. So start with the cofferdam. A cofferdam is a temporary structure which is built in a river, lake, etc. to remove water from an area and make it possible to carry on the construction work under reasonably dry condition. So cofferdam एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, उसका यूज हम वाटर को रिमूव करने के लिए करते हैं. So construction work is carry on under reasonably dry condition. Cofferdam are usually required for a projects such as dam, docks and construction of bridges, pier and abutment. So cofferdam we are usually required in projects such as dam, dock and construction of bridge, piers and abutment. These types of construction work we can use cofferdam. Now, uses of cofferdam. The following are the uses of cofferdam. To facilitate pile driving operation. जब पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन करना है तब आप कोफरडैम का यूज़ कर सकते हो. टू प्लेस ग्रिलेज एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन. ग्रिलेज एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन जब आप प्लेस कर रहे हो, यानी कि आप सेलो फाउंडेशन जब आप प्लेस कर रहे हो तब भी आप ये कोफरडैम का यूज़ कर सकते हो. टू कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन ऑफ पियर्स एंड एबटमेंट ऑफ ब्रिजेस एंड डैम. जब ब्रिजेस और डैम, ब्रिजेस का पियर और एबटमेंट और या डैम आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तब भी आप कोफरडैम का यूज़ कर सकते हो. टू प्रोवाइड ए वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग का जब फाउंडेशन आप बना रहे हो तब भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए कोफरडैम का यूज़ कर सकते हो. To provide space for carrying out the foundation work without disturbing or damaging the adjoining structure such as building, sewers, pipeline, etc. Mainly cofferdam is used for the construction work in reasonably dry condition in river, and there are whenever we are going to work, whenever we are going to foundation work nearby any adjoining structure, building, sewer, pipeline. So cofferdam is used for protection for the adjoining structure, so that structure is not disturbing or damaging. Now selection of types of cofferdam. सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन कौन सा है कोफरडैम का वो हम देखते हैं. द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड बाय कोफरडैम. एरिया है वो कोफरडैम से प्रोटेक्ट होना चाहिए. द डेप्थ ऑफ रिवर. रिवर की डेप्थ कितनी है, सेलो है या डीप है, वो सबसे पहले मेज़र करके आपको कोफरडैम का सिलेक्शन करना चाहिए. द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरटॉपिंग बाय फ्लड. जो कोफरडैम आपने बनाया है उस कोफरडैम में फ्लड की वजह से ओवरटॉपिंग की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है वो भी आपको चेक करना चाहिए. द नेचर ऑफ बेड. बेड का नेचर कैसा है, परवियस बेड है या इम्परवियस बेड है, यानी कि वाटर का फ्लो जिस सॉइल में से होता है उसको हम परवियस बोलते हैं, और जिस सॉइल में से वाटर का फ्लो नहीं होता है उसको हम इम्परवियस बोलते हैं. सो बेड का नेचर कैसा है वो भी सबसे पहले चेक करना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर. जो वाटर का फ्लो है उसकी वेलोसिटी कितनी है उसको सबसे पहले चेक करना चाहिए फॉर सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ कोफरडैम. The possibility of scour due to reduction of waterway caused by the construction of cofferdam. तो कंस्ट्रक्शन वर्क किया है हमने कोफरडैम का, उसकी वजह से हमने वाटरवे है उसको उसका जो कोई उसकी वजह से कोई स्कावरिंग नहीं होना चाहिए, वो भी सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए. दैन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल. जिस टाइप का हम कोफरडैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लाइक हम अर्धन कोफरडैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे
सॉइल को लाने के लिए कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होनी चाहिए। नाउ द टाइप्स ऑफ कॉफर डैम। सो देर आर 8 टाइप्स ऑफ कॉफर डैम। फर्स्ट वन इज earthfill coffer dam, rockfill coffer dam, rockfill creep coffer dam, single wall coffer dam, double wall coffer dam, cellular coffer dam, concrete coffer dam and suspended coffer dam. So start with the earthfill coffer dam. We are directly go on to the figure for betterment. सिंपल फॉर्म ऑफ कॉफर डैम है ये। कॉफर डैम का सिंपल फॉर्म है कंसिस्ट ऑफ एन अर्दन एम्बैंकमेंट बिल्ड अराउंड द एरिया टू बी एनक्लोज। उसमें हम सॉइल का यूज़ करते हैं जो एरिया है उनको एनक्लोज करने के लिए। Then constructed where the depth of water is not much, वाटर की डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं है, लाइक 1.3 to 1.8 मीटर तक की जो डेप्थ हो वहाँ पे हम ये earthfill coffer dam है वो बना सकते हैं। और फ्लो की वेलोसिटी है वो भी लो होनी चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट है इट शुड बी अबाउट 1 मीटर अबाउट द वाटर लेवल से 1 मीटर अबव होना चाहिए। टॉप विड्थ ऑफ बैंक शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर। देन साइड स्लोप आपको जो दिखाई दे रहे में वेरी फ्रॉम 1 to 1.5 to 1 to 2 होना चाहिए। एम्बैंकमेंट शुड बी बिल्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड और क्ले एंड ग्रेवल। एम्बैंकमेंट बनाने के लिए जो आप मिक्सचर कर रहे हो वो क्ले और सैंड का होना चाहिए और क्ले या ग्रेवल का होना चाहिए। प्रिवेंट एम्बैंकमेंट फ्रॉम स्कावरिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिवर। साइड स्लोप शुड बी पिच विथ रबल बोल्डर। सो कॉफर डैम की वन साइड है, आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर लेवल है और उसकी ऑपोजिट साइड है वहाँ पे स्मॉल स्टोन पिचिंग की गई है ड्यू टू प्रिवेंट embankment from scouring action of water. Now the advantages of earthfill coffer dam. It is suitable for narrow and sluggish river. It is suitable for low and moderate head of water. These are cheaper as for wet conditions sand is used and for dry condition clay is used. जो सैंड है उसको हम वेट कंडीशन में यूज़ करते हैं तो वो बहुत चीप रहेगी। एंड ड्राई जब क्ले का यूज़ करते हैं तो क्ले है वो ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ इरोजन इन सैंड एम्बैंकमेंट कैन बी सॉल्व बाय प्रोवाइडिंग ड्रेनेज डिच ऑन द आउटसाइड। फिगर में आप देख सकते हैं जो आउटसाइड एरिया है वहाँ पे ड्रेनेज डिच प्रोवाइड किया गया है फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ इरोजन इन सैंड एम्बैंकमेंट। उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ड्रेनेज डिच प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद है रॉकफिल कॉफर डैम। वी आर डायरेक्टली गो टू द फिगर। In rockfill coffer dam, if the depth of water to be retained by the embankment of coffer dam is of order of 1.8 to 3 मीटर, जब वाटर की जो डेप्थ है 1.8 से 3 मीटर तक की है तो वहाँ पे आप स्टोन और रबल का यूज़ करके एम्बैंकमेंट बना सकते हो। दिस कंस्ट्रक्शन इज एडोप्टेड ओनली इफ द स्टोन इज इजीली अवेलेबल इन द नियर बाई एरियाज। ये सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ता है कि रॉकफिल कॉफर डैम है उसको बनाने के लिए जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो उसके नियर बाई एरियाज़ में आपको स्टोन इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देन एन इम्परवियस लेयर ऑफ द अर्थ इज लेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द कॉफर डैम विच मेक्स इट इम्परवियस। और उसके आउटसाइड में हम एक इम्परवियस लेयर भी लगाया गया है
सो उसके वजह से क्या होता है, जो कोफर डैम है वो इम्परवियस हो जाता है। फॉर बेटर कंस्ट्रक्शन द कोर वॉल और सीट पाइल्स एक्सटेंडिंग अप टू द इम्परवियस लेयर में बी प्रोवाइडेड। उसका बेटर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो उसमें कोर वॉल या सीट पाइल है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। द कोर वॉल मे बी ऑफ क्ले और कंक्रीट। जो हम कोर वॉल प्रोवाइड करते हैं तो कोर वॉल है वो या तो क्ले और या कंक्रीट की होनी चाहिए। Then Rockfill Creek Coffer Dam. So we are directly go on to the figure. A Rockfill Creek Coffer Dam is comprised of timber creep. वो comprised timber creep का बना सकते हैं आप। Creep is a framework of wooden, horizontal and cross beam laid in alternate courses. आप फिगर में देख सकते हो कि वुडन का जो क्रीब है वो फ्रेमवर्क ऑफ वुडन हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस बीम की बनी गई है और उसको अल्टरनेट कोर्स में रखा गया है। द क्रीब्स आर ओपन एट द बॉटम एंड आर फिल्ड विद द रॉक और ग्रेवल और अर्थ। जो क्रीब है वो बॉटम में ओपन रहती है, उसमें हम रॉक और ग्रेवल और अर्थ फिलिंग कर सकते हैं। This gives stability to the creep against overturning or sliding. वो overturning और sliding के अगेंस्ट में stability प्रोवाइड करता है। और उसके बाद है सिंगल वॉल कॉफर डैम। So we are directly move on the figure. So this is the double wall coffer dam. In this figure, these types of coffer dam is used in place where the area to be enclosed in very small and the depth of water is more, says 4.5 to 6 meter. जो एरिया है इनक्लोज करना है वो वेरी स्मॉल है और डेप्थ की वाटर है वो ज़्यादा है, 4.5 से 6 मीटर तक की है। टिम्बर पाइल नॉन एज ए गाइड पाइल आर फर्स्ट ड्रिवन डीप इनटू द फर्म ग्राउंड बिलो द रिवर बेड। सबसे पहले जो टिम्बर पाइल है उसको हम गाइड पाइल बोलते हैं। उसको सबसे पहले ड्रिवन कराना होता है जहाँ तक फर्म ग्राउंड ना आ जाए रिवर के बेड में, वहाँ तक। Depending upon the velocity of flow of water, the center to center spacing of piles may vary between 1.8 to 4 मीटर। वाटर की वेलोसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि दो पाइल है उसके बीच में कितना स्पेसिंग रखना चाहिए। उसका स्पेसिंग हम 1.8 to 4 मीटर रख सकते हैं। और यहाँ पे फिगर में जो लॉन्जिट्यूडिनल रनर्स कॉल्ड वेल्स आर देन वोल्टेड टू द गाइड पाइल्स एट सुटेबल डिस्टेंस अपार्ट सीट पाइल्स of steel or wooden and then driven into the river bed along the wells and are secured to the wells by bolts. Then the seat piles on the two faces are braced by strut. In this figure the strut are braced two faces are braced by strut. Half filled bag of sand are stacked on the inside and outside faces of the seats to increase the stability of coffer dam. आफ्टर उसके बाद क्या करना है, जो बैग है उसको हाफ फिल करके सैंड की हाफ फिल बैग करके आपको इनसाइड और आउटसाइड फेसेस है जो सीट पाइल की वहाँ पे आपको स्टैक करना है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉफर डैम की स्टेबिलिटी है उसमें वो इंक्रीज होती है। After the coffer dam is constructed, the water in the enclosed area is pumped out and the construction work is taken up. कॉफर डैम कंस्ट्रक्ट होने के बाद आप उसमें जो वाटर है उसको बाय यूजिंग पंप उसको बाहर निकाल के कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कर सकते हैं। Then cellular coffer dam, we are directly go on to the figure. The cellular coffer dam is made of steel sheet pile.
सेल्यूलर कॉपर डैम है वो स्टील शीट पाइल से बना गया है. इट इज़ मोस्टली यूज फॉर डी वाटरिंग लार्ज एरियाज इन प्लेस where the depth of water may be of the order of 18 to 21 मीटर. जहाँ पे वाटर की डेप्थ है वो ज़्यादा है, लाइक 18 to 21 मीटर तक की है, और वहाँ पे आपको डी वाटरिंग करना है, वहाँ पे वाटर को रिमूव करना है, तो वहाँ पे आप सेल्यूलर कॉपर डैम का यूज़ कर सकते हो. So there are two types of cellular coffer dam. First one is circular types of cellular coffer dam and second one is diaphragm types of cellular coffer dam. यहाँ पे फिगर में दिया गया है circular types and diaphragm types cellular coffer dam. So first one is circular coffer dam. In case of diaphragm cellular coffer dam, सबसे पहले diaphragm cellular coffer dam जो राइट हैंड साइड में आपको फिगर दी गई है. इन केस ऑफ डायाफ्राम सेल्यूलर कॉपर डैम, सीरीज ऑफ आर्क्स आर कनेक्टेड टू स्ट्रेट वॉल. जो आर्क है उसको स्ट्रेट वॉल के साथ कनेक्टेड करके डायाफ्राम सेल्यूलर कॉपर डैम बना सकते हैं. द रेडियस ऑफ आर्क्स इज जनरली मेड इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल. तो दो वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की आर्क है उसकी रेडियस रहती है. विद दिस अरेंजमेंट्स द टेंशन इन आर्क एंड वॉल रिमेन इक्वल. आफ्टर द सेल आर ड्रिवन टू द रिक्वायर्ड डेप्थ दे आर फिल्ड विथ अर्थ, सैंड और ग्रेवल. वो जो डायाफ्राम सेल है वो कंप्लीट होने के बाद उसको रिक्वायर्ड डेप्थ तक ड्रिवन कराने के बाद उसमें हम अर्थ फिलिंग, सैंड फिलिंग और ग्रेवल फिलिंग कर सकते हैं. और देन सेकंड है सर्कुलर सेल्यूलर कॉपर डैम. इन केस ऑफ सर्कुलर सेल्यूलर कॉपर डैम, series of complete circles are connected by short arc as shown in figure. In first figure we are shown circular cellular copper dam. So these are the figure of circular cellular copper dam. And now design features of copper dam. Design features कौन सा होना चाहिए? So देखते हैं. The design of coffer dam depends upon the following factor. coffer dam की डिज़ाइन है वो following factors पे डिपेंड करती है. सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक हेड ऑफ वाटर, वाटर का हाइड्रोस्टेटिक हेड कितना है, डायमेंशन ऑफ द एरिया टू बी कवर्ड बाय द कॉफर डैम. जो कॉफर डैम हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी एरिया है वो कवर्ड होता है कि नहीं. देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो वाटर है उसकी वेलोसिटी कितनी है. देन सबसॉइल कंडीशन, सबसॉइल कैसी है, परवियस है या इम्परवियस है, वो भी सबसे पहले चेक करना पड़ता है. देन फ्लक्चुएशन ऑफ आउटसाइड वाटर लेवल, वाटर आउटसाइड वाटर लेवल है वो कितना फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे कितना होता है, वो सबसे पहले चेक करना चाहिए. देन पॉसिबिलिटी ऑफ इरोजन, इरोजन होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है. देन फ्लोटिंग लॉग्स, देन प्रेजेंस ऑफ आइस. ये सब है डिज़ाइन फीचर्स. जब आप कॉफर डैम की डिज़ाइन कर रहे हो तो ये सब फैक्टर है वो ध्यान में रखने चाहिए. देन वेरियस forces acting on coffer dam, also forces acting on coffer dam like self weight of coffer dam, coffer dam का सेल्फ वेट कितना है, वाटर प्रेशर कितना है, अर्थ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड सॉइल, आउटसाइड सॉइल है कॉफर डैम के आउटसाइड की जो सॉइल है उसका प्रेशर कितना है, अपलिफ्ट प्रेशर, स्कावरिंग एक्शन एंड आइस प्रेशर. ये सब को भी, ये सब पॉइंट्स है वो भी फॉलो करने चाहिए जब आप कॉफर डैम की डिज़ाइन कर रहे हो. Then as it is sometimes not possible to determine accurately the forces acting on coffer dam, the worst condition should be assumed in the design to prevent its failure. जब आप पूरी तरह से जो फोर्सेस एक्टिंग हो रहा है कॉफर डैम पे वो एक्यूरेटली आप कैलकुलेशन जब डिटरमाइन आप नहीं कर सकते हो तब आपको जो उसकी वर्स्ट कंडीशन है उसको ध्यान में रख के उसका डिज़ाइन करना चाहिए टू प्रिवेंट इज फेलियर. समटाइम्स प्योरली थियोरेटिकली डिज़ाइन कॉफर डैम में फेल फॉर फैक्टर अनअकाउंटेड इन इट्स डिज़ाइन.
प्योरली थियोरेटिकल डिज़ाइन है, उसकी वजह से उसकी जो कॉपर डैम है उसमें फेलियर हो सकता है. सो इट इज़ नेसेसरी टू कंबाइन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इन द डिज़ाइन ऑफ कॉपर डैम. तो आप जब डिज़ाइन कॉपर डैम की डिज़ाइन कर रहे हो तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज दोनों को कंबाइन करके उसकी डिज़ाइन करनी पड़ती है. The width and depth of copper dam are determined as below. For h less than 3 meter, so W is equals to h. For h greater than 3 meter, so W is equals to 3 plus 1 by 3 h minus 3. So यहाँ पे W है वो है width of copper dam and height है h है वो height of water above the river bed. नाउ लीकेज प्रिवेंशन इन कॉपर डैम. कॉपर डैम में जो लीकेज होता है उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए. तो वाटर एंटर इन द कॉपर डैम इन टू वेज, बाय लीकेज थ्रू द सीट पाइलिंग, बाय फ्लो फ्रॉम बेज. या तो जो सीट पाइल है उसमें कोई लीकेज होने की वजह से वाटर का फ्लो होता है और कॉपर डैम का जो बेज है वहाँ से वाटर का फ्लो होता है. तो देखते हैं. The following measures may be to prevent leakage in coffer dams. The materials such as clay, sand, ashes, etc. may be dumped all around the coffer dam to reduce the quantity of entering water. तो कॉपर डैम की नियर बाई एरियाज़ में आपको क्ले, सैंड और एसिस लाइक एक्सेट्रा ऐसा जो मटेरियल होता है उसको डंप करके अब वाटर की क्वांटिटी है उसमें वाटर जो एंटरिंग हो रहा है उसमें आप वो क्वांटिटी आप रिड्यूस कर सकते हो. इफ़ द एंट्री ऑफ वाटर इज थ्रू द क्रैक्स ऑफ रॉक कैन बी स्टॉप बाय पंपिंग सीमेंट ग्राउट थ्रू 100 mm डायमीटर पाइप्स. और जो रॉक है उसकी क्रैक में से जो वाटर एंटर हो रहा है तो उसमें आप सीमेंट की जो ग्राउट है उसको बाय पंपिंग आप उसको स्टॉप कर सकते हो. The leakage in case of single wall copper dam may be prevented by placing V-shaped wooden through outside each joint and filling it with puddle. जो सिंगल वॉल कॉपर डैम है उसमें जो लीकेज है तो वहाँ पे आप वी शेप का वुडन शेप बना के वहाँ पे आप पडल को फिल कर सकते हो. देन द लीकेज in case of a double wall copper dam occurs due to insufficient compaction of fill. डबल वॉल कॉपर डैम में आपने पूरी तरह से कम्पेक्शन नहीं किया है तो वहाँ पे भी वाटर है उसका लीकेज होता है. तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है. जब आप सॉइल है उसको जब फिल करते हो तो उसका कम्पेक्शन पूरी तरह से करना चाहिए. दिस में बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वे. यहाँ पे नीचे सम पॉइंट्स दिए गए हैं टू प्रिवेंट द water entering in copper dam. Driving walls and filling these walls with the material which swell quickly when wet and it's also act as a filter. So copper dam में wall drive करके उसमें मटेरियल है उसको फिल करना चाहिए. कैसा मटेरियल तो कि वो डायरेक्टली स्वेल हो जाए और जो वॉल है उसको फिलअप कर दे और बाद में वो फिल्टर की तरह एक्ट करे. वो वैसा मटेरियल आपको यूज़ करना चाहिए. फोर्सिंग क्ले थ्रू पाइप्स इनटू द वॉल. और वॉल है उसमें आप क्ले को फोर्स से डाल के भी आप लीक है उसका प्रिवेंशन कर सकते हो. द इंटरलॉक ऑफ स्टील सीट पाइल्स मे बी प्रोवाइडेड विथ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्रीस बिफोर ड्राइविंग. जब आप इंटरलॉक है स्टील सीट पाइल का वो प्रोवाइड कर रहे हो तब उसमें ग्रीस लगा के बाद में उसमें ड्राइविंग करना चाहिए. द फाइन मटेरियल कैरीड बाय द वाटर विल स्टिक टू द ग्रीस एंड इट विल मेक द जॉइंट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ वाटर. सो these are the prevention of leakage in coffer dam. So now we are concluding our session. If you have any further questions or want additional information, please feel free to contact me by phone or email. Thank you very much.